Welcome, students, to another important lecture regarding psychology, that is, intelligence. In this lecture, we will discuss nature and definitions as well as the characteristics of intelligence. And it is not a single lecture, but it is a combination of three lectures. In this lecture, we will discuss these things. And in the second lecture, we will discuss the theories. And the third lecture, we will discuss the tests of the intelligence. Intelligence. So the lecture will be a combination of both English and Urdu for most of the requests from the students. Intelligence. Zahan, up to this point, we have presented the organism in general and man in particular. Why a man is being considered as superior organism, superior creature. This general picture sketches the various ways of human behavior, like what he does, how he does, and why he does. So this is an important thing. The question with respect to the reason date, which is particular characteristics of the human beings, and so why we deal the word intelligence with the humans. Intelligence. Let's start our talks, our discussion for today's lecture. That is intelligence. The most common word, uh, perhaps the most common word of everyday usage. In our daily life situations or daily life activities, we always confront and and listen the people, observe the peoples by saying and classifying the peoples that one who is intelligent and the other who is considered as a dull. We very frequently say that he is very intelligent and he is dull. And where has our intelligence gone? So where your intelligence? So and so, such usages of the terms denotes that the term intelligence is a most popular and used common word of everyday life and our activities. So intelligent person is wise. We call him a wise man, a wise person on the basis of his activities, the variety of the activities which he performs. For example, when we classify someone who's intelligent or dull, so we commonly presumes that on the belief or the expectations, what a wide varieties of activities that an intelligent person would be supposed to perform, where a dull person who is not able to do so. So the former would be expected to learn a difficult task, the intelligent one on the basis of, so we call them on the basis of our minute observations. We say it is bright or intelligent one and one who is not intelligent or dull one. We also believe that and expect even that the intelligent person would be able to adjust to the new or unfamiliar sort of situations and to adjust himself. So the intelligent person is further expected to solve new and complicated situations or problems and can solve it and came out with a better position and to solve problems, whereas the dull can't to do so. Similarly, these are the signs, and that similarly, an intelligent person can make minute observations. Uh, so, in the basis of his past experiences, sometimes he can do and perform certain activities very well, and whereas a dull person again cannot do so. So, an intelligent person is also supposed to have a power to think abstractly, which a dull person cannot. So, these are the normally we observe. Uh, these are the qualities or the characteristics. It is constructed that intelligence can be understood in the terms of various activities of a person. So, uh, various activities. We call him intelligent on the basis of its activities. So this is important one, that we called him intelligent on the basis of certain performed activities. So it would be wrong to assume intelligence in terms of these activities alone. These activities are merely signs
उन्हें हम साइंस कहते हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेट्स कहते हैं, ठीक है? ऑफ इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस इन फैक्ट इज़ समथिंग मोर देन दीज़ साइंस, लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो इससे भी आगे है, इन सिग्निफिकेट से भी आगे है। अगली स्लाइड में जाते हैं। A powerful intelligence. It's a powerful faculty of mind. Intelligence is also thought as a powerful faculty of mind, owing to which human beings have been able to gain dominance over the animal. So इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इसको superior animal कहा गया है कि इसको बाकी creature पर फौकियत हासिल है, फजीलत हासिल है। मेरा creature का spelling ठीक नहीं है, ऐसे आप kindly mistake है, creature है ये word, ठीक है? So डोमिनेंस है, इसको फजीलत हासिल है। डिस्पाइट दिस इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इंडिविजुअल differs in their high developed trait, people लेकिन फिर भी एक दूसरे ये वेरी करता है, और इंडिविजुअल का टाइम टू टाइम वेरी करता है, ठीक है? So people differ in their ability to understand complex ideas, adapt effectively to environment, to learn more experience, and to engage form of reasoning, and to overcome obstacles, to solve the problems by the basis of on their own judgment, and about the intellectual competencies of the people, और फिर उसकी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कि उसको बाकियों से इंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट बनाती हैं, और हम उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं, लेबल कहते हैं। So no limited to any particular activity. Hence it is called the general ability. General ability कैसे है कि आप स्कूल टास्क करते हैं, कॉलेज टास्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, ग्राउंड में स्पोर्ट्स में कोई टास्क करते हैं, ड्राइविंग में कोई टास्क करते हैं, मार्केट में। सो इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी हैं, बहुत से पर्टिकुलर टास्क, सो मैटर्स, प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग में, परफॉर्मिंग डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं। सो ऑल दीज ऑब्जर्विंग इकोनॉमी एफर्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो हेंस इंटेलिजेंस को हम एक जनरल एबिलिटी भी कहेंगे। यहाँ से हमारी डिस्कशन में इंटेलिजेंस हमें एक जनरल एबिलिटी नजर आई है। आगे, नाउ इट्स अंडरस्टैंडिंग इज बीन चेंज, कि पिछली पिछली स्लाइड में मैंने कहा कि इसका जो रोल है वो ज्यादा है, मल्टी फेसिटेड है। तो हमें ये कहना पड़ रहा है कि ज़ाहिर-सी बात है, शुरू में इसको कॉग्निटिव मेंटल एक्टिविटी या कॉग्निटिव डोमेन का वो उसमें लेकर आए थे। लेकिन आजकल इसकी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस ड्रास्टिकली चेंज हो गई है, और इसको हम यूनिडायमेंशनल नहीं कहेंगे, बल्कि मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी कहेंगे, मल्टी डायमेंशनल कहेंगे। तो ये लफ्ज़ मेरा ठीक करना है आपने, मुझसे गलती हुई है, ग्लोबल एक्टिविटी नहीं है बल्कि ग्लोबल कैपेसिटी है, ठीक है? इसको काइंडली इसको ठीक करना है, ये आगे भी शायद मिस्टेक किसी जगह आ सकती है। सो मल्टी डायमेंशनल है ये, यूनिडायमेंशनल नहीं। So the recent most views of the psychologist है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, ये है कि ये इफेक्टिव है और सोशल डिमांड है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसके इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जोर देते हैं, जो कि वेरी करता है कल्चर टू कल्चर, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री। तो इसीलिए हम इसे एक मल्टी डायमेंशनल फीचर कहेंगे और ग्लोबल वन कहेंगे। So it is common in our life and plays a very important role in our daily life usages, ठीक है, usages, and the term is used to denote abilities involving to performing a variety of the tasks to which we will fulfill. So for a large number of research psychologists, more particularly those connected with the research studies in terms of child psychology rather as educational psychology, तो इंटेलिजेंस का रोल कभी कम नहीं हुआ है, और बल्कि एक सेंट्रल टॉपिक रहा है रिसर्चर्स के यहाँ, ठीक है जी। आगे, इसकी अब हम इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, और इसके मीनिंग में इसको हम 4 कैटेगरीज़ में तक़सीम करेंगे, और 4 यानी कैटेगरीज़ की डेफिनिशंस के हवाले से बात करेंगे, और उसके बाद डेफिनिशंस, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। So there are several synonyms for intelligence being used in English, like capacity है, talent है, aptitude है, discrimination है, मेंटल एक्यूटनेस हो सकता है, कंप्रीहेंशन हो सकता है, एबिलिटी हो सकता है इंग्लिश में, ठीक है? बहुत से अल्फाज। इसी तरह से उर्दू लैंग्वेज में उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चालाक, ज़हीन, होशियार, और
बहुत तेज़, अ, यानी इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से हिंदी में भी कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इंटेलिजेंस के लिए, जैसे बुद्धि का लफ्ज़ है, प्रतिभा का लफ्ज़ है, परिजना का लफ्ज़ है, मेधा का, दीहि का, चतुर्या का, तो ये लफ्ज़ हिंदी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, इंटेलिजेंस के लिए सिनोनिम्स हैं, ठीक है? अब इसकी एक्टिविटी के हवाले से अगर बात करें तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रीज़निंग पावर, मेंटल अलर्टनेस, डिसीजन मेकिंग, uh, mental alertness, ability to grasp relationships, इसी तरह से ability to form good association, ये सारी abilities हैं, ability to perform a certain task, ability to play, ability to act, ठीक है, ability to speak, so ये सारे expression, ये सारी चीजें ये intelligence की abilities में जाहिर होती हैं। तो इससे हमें ये नज़र आता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स वन है और पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि ये मल्टी डायमेंशनल है। So obviously the concept of intelligence becomes a complex enough and multi-dimensional in nature. So nature के एतबार से intelligence क्या है, complex वन है और multi dimensional या multi dimensional है। So hence giving a precise definition of this concept is very difficult. So हम इसकी चार कैटेगरीज लेकर आए हैं, यानी definition can be grouped into four categories. नंबर एक के डेट डिफाइन इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न। पहली जो कैटेगरी है वो कहती है कि पहली कैटेगरी में इसकी डेफिनेशन में है कि डेफिनेशंस डेट डिफाइन। पहली कैटेगरी इंटेलिजेंस को लर्निंग के तौर पर लेती है कि इट इज़ एन एबिलिटी टू लर्न। दूसरी कैटेगरी कहती है कि इट इज़ एन एबिलिटी टू एडजस्ट। तीसरी कैटेगरी कहती है इट इज़ एन एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। और चौथी कैटेगरी कहती है इट इज़ एन एबिलिटी टू ability in terms of global capacity. So ये चार कैटेगरीज में हमारी डेफिनेशन जहां भी होंगी ये फॉल करेंगी, या इस कैटेगरी में लर्निंग वाली में कि इंटेलिजेंट है, एडजस्ट करना है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, वो भी है, थिंक एब्स्ट्रैक्टली उसमें आएगा, ग्लोबल कैपेसिटी। आगे हम इनको देखते हैं, मुख्तलिफ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो हैं वो, या मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने किस तरह से इसे लिया है। तो पहली कैटेगरी में एबिनॉस और थॉर्नडाइक वो डिफाइन करते हैं कि intelligence is an ability to learn or profit from past experience और form good association। ये आपने थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे कि वो कहता है कि पुराने तजर्बे से बुरे चूहों पर जो तजर्बे किए थे वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करते हुए अपना आगे वो चलते हैं और वो केजेस से बाहर निकल आते हैं या खुराक की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और मिल जाती है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस का या फिर अ फॉर्म गुड एसोसिएशन, ये भी इसी में आएगा, ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं, फॉर्म गुड एसोसिएशन along with profit from past experiences, the first category of definition regarding intelligence, that is Ebbinghaus and Thorndike। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में स्टर्न, कैगन और हैवमैन और क्रूज हैं। ये कहते हैं कि डिफाइन इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू एंड अनफेमिलियर सिचुएशन। वो कहते हैं कि आप न्यू सिचुएशन में किस, आपके पास एबिलिटी है कि आप नई सिचुएशन में, अनफेमिलियर सिचुएशन में एडजस्ट कर जाते हैं। और फिर इसी में कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टैंड करते हैं कि लर्न भी करना है और एडजस्ट भी करना है, ना सिर्फ एडजस्ट करना है बल्कि आप लर्न भी करते हैं। कैगन और हैवमैन उन्होंने इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन किया है कि दैट इट इज द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस टू लर्न न्यू इंफॉर्मेशन एंड टू एडजस्ट न्यू सिचुएशन। यानी कैगन और हैवमैन इसमें यानी पहले वाले थॉर्नडाइक की भी हेल्प ले रहे हैं कि वो पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं आप पास्ट एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल करते हुए नई सिचुएशन में एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये कैगन और हैवमैन थोड़ा सा आगे हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड में, जिसमें थर्ड ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट है जो डेफिनेशंस के एतबार से टर्मन, रैक्स, नाइटमैन, ये एम्फेसाइज करते हैं इस बात पर कि दैट द यूज ऑफ सिंबॉलिक प्रोसेस एंड थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कि आप सिंबॉलिक प्रोसेस का यानी इस्तेमाल करते हैं और abstractly think सोचते हैं as an important aspect of individual's intelligence behavior. For example, Terman holds that an individual is intelligent in proportion to his abilities to carry on abstract thinking। वो कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो
अगर वो उसको ज़हीन की कैटेगरी में हम लेकर आएँ तो वो अपनी एबिलिटीज़ के एतबार से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आगे जाएगा। Similarly, Mune, M-U-N-N, he defines that intelligence as a versatility in the use of symbolic process. और इस तरह से रेक्स और नाइट भी जब इंटेलिजेंस को डिफाइन कर ले होते हैं तो put emphasis on the capacity for rational and constructive thinking की बात करते हैं। तो ये लोग थर्ड कैटेगरी वाले एब्स्ट्रैक्ट रैशनल थिंकिंग की, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की बात करते हैं कि ये होगा तो आप इंटेलिजेंट होंगे। इसी तरह से हम चलते हैं आखिरी की तरफ, चौथी कैटेगरी में, कि स्टर्डर्ड और वेस्लर वेस्लर कहते हैं कि ये ग्लोबल सॉरी, ये एक्टिविटी नहीं है, मैं मुझसे गलती हुई है कि ये ग्लोबल एक्टिविटीज में से आप इसको काटते हैं, ग्लोबल कैपेसिटी है, द वर्ड इज ग्लोबल कैपेसिटी नॉट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये लोग ग्लोबल ग्लोबल कैपेसिटी की बात करते हैं और इसमें ये दोनों जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो डिफाइन करते हैं इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरटेक एक्टिविटीज डेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब वो क्या है? बाय डिफिकल्टी, complexity, abstractness, economy, adaptiveness, social value, emergence of originals, and maintain such activities under conditions that demand a concentration of energy and resistance to emotional forces, कि आप किस हद तक उन पर काबू पाते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पर आगे निकल कर आते हैं। ठीक है? और आगे चलकर फिर मज़ीद यही 2 इनकी मज़ीद तशरीहात हैं। आप को मैं किसी और लेक्चर में बता दूँगा या फिर आप इंटरनेट से भी देख लें, लेकिन ये 4 कैटेगरीज़ आपकी डेफ़िनिशंस के एतबार से जहाँ भी होंगी, ये फ़ॉल करती हैं। यानी मतलब पहली में आप देख लें पास्ट एक्सपीरियंस, दूसरी में पास्ट बिफोर एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट, और तीसरी में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और चौथी में ग्लोबल कैपेसिटी है। आगे चलते हैं थोड़ा-सा कि इनकी डेफिनिशंस को मैंने कुछ थोड़ा-सा यहाँ लिया हुआ है कि इंटेलिजेंस इज़ अ फंडामेंटल faculty, the alteration of the lake of which is of utmost importance for practical life. This faculty is judgment. वो faculty क्या है? Judgment है, otherwise called good sense, practice, all sense, initiative, or the faculty of adapting oneself to the circumstances, बैन की है। इसी तरह से इंटेलिजेंस को हाइज़निक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको भी आप देख लें। इसी तरह से आगे गुइलफोर्ड ने भी ये वही कैटेगरीज हैं जो हमने बताई हुई हैं। जैसे मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपके वहाँ आएगा टू क्रिएट प्रोडक्ट्स that are valued within one or more cultural setting. Intelligence is performing an operation in a specific type of content or to produce a particular product। जीपी गुइलफोर्ड की है। आगे आ जाएँगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ द पावर और कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ये ख़ुसूसियत इंसानों के पास है। इंसानों के पास है कि वो उनके पास है कि वो किस तरह से रीज़न का मेक रीज़न, अंडरस्टैंडिंग एंड वेल जजमेंट का वो करते हैं। और इंटेलिजेंस इज़ कैपेसिटी व्हिच इज़ इनहैरेंट एज़ वेल एज़ एक्वायर्ड। ये इंटेलिजेंस आपके हाँ होती भी है और आप एनवायरनमेंट में एक्वायर भी करते हैं। 2 बातें इसमें आएँगी। एक ये, कुछ लोग आपने सुना होगा ना गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो ये इनेट हो जाएगी, ठीक है? या विरासती तौर पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और इसी तरह से आप एक्वायर भी करते हैं, यानी आप अपनी मेहनत के बलबूते पर आप वर्क हार्ड करते हैं, तो आप इंटेलिजेंस एक्वायर भी करते हैं, ठीक है? यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएँगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनेट एंड एक्वायर्ड। अच्छा, इंटेलिजेंस मीन्स ऑल राउंड मेंटल एफिशिएंसी, यानी ये नहीं है कि कोई ख़ास काम किया, बल्कि ऑल राउंड परफॉर्मेंस आपकी क्या है, ठीक है? तो होलिस्टिक अप्रोच, ऑल राउंड मेंटल एफिशिएंसी, ठीक है? इसको भी इंटेलिजेंस में लेंगे, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, इंटेलिजेंस इज़ अ पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रुथ, यानी आपका रिस्पॉन्स क्या है सच्चाई के हवाले से, आपका क्या नज़रिया है, आपकी क्या फाइनल से है किसी भी फिनोमेना के हवाले से, ठीक है जी? इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ एडाप्टेशन एंड एडजस्टिंग टू अ न्यू सिचुएशन। ये आपको याद होगा मैंने जो कैटेगरी नंबर 2 शायद बता रहा था, तो वहाँ आपको नज़र आई थी कि आप अडॉप्ट भी करते हैं, आप न्यू सिचुएशन में कैसे अडॉप्ट करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस को कार लाते हुए, तो बेटर नोवेल सिचुएशन में तो इंटेलिजेंस आप वहाँ इंटेलिजेंट या एडजस्टमेंट के एतबार से या रीएडजस्टमेंट के एतबार से आप उसको पॉसिबल बनाते हैं अपनी एडजस्टमेंट को या रीएडजस्टमेंट को किसी भी सिचुएशन में, तो ये उसकी एक खसूसियत है। अच्छा,
फिर इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भी हमने बात की थी। एक कैटेगरी नंबर 4 थी जिसमें कि आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से ले रहे होते हैं, लॉजिकली सोच रहे होते हैं, ठीक है। और मैं पढ़ लेता हूँ। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, इट इज आल्सो द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस and hence it makes the profitable use of the past. Intelligence is not knowledge, though acquisition of knowledge depends to a great extent on intelligence and vice versa. ठीक है, यानी उसका यहाँ ये प्रैक्टिकेबिलिटी की बात करता है कि आप अपनी एक्सपीरियंस पर को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ये कहता है कि इंटेलिजेंस इज नॉट एक्वायर्ड आफ्टर सस्टेन्ड लेबर, ठीक है, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर। यानी ये एक्वायर्ड की बात नहीं करता है, ये कहता है कि ये गिफ्ट ऑफ नेचर है। और एक नजरिए के लोग ये कहते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि ये एक्वायर होता है। अच्छा, आगे इंटेलिजेंस इज नॉट मेमोरी। वो कहता है कि एन इंटेलिजेंट पर्सन में हैव पुअर मेमोरी हो सकता है। इंटेलिजेंस इज नॉट अ स्किल व्हिच अ वर्कर रिक्वायर्स आफ्टर प्लान्ड प्रैक्टिस। इंटेलिजेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ अ गुड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी। होप यू हैव अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।